A very good morning to all of you. I welcome all my students to my online logic and philosophy classes. A warm welcome to all of you. Let us start with our today's class. As we have already started with chapter 4, that is Mill's experimental inquiry. So far we have completed with 3 methods, that is method of agreement, method of difference and the joint method of agreement and difference. Today we will start with the 4th method, and what is the name of the method? Let us see. The name of the method is method of concomitant variation. Okay. Once again, the 4th method in Mill's experimental inquiry is the method of concomitant variation. Okay. So सबसे पहले let us see what is the canon or the principle of this method. Okay. Whatever phenomena varies in any manner whenever another phenomena varies in same particular manner is either a cause or an effect of that phenomenon or is connected with it through some fact of causation. Okay, so this is the canon or the principle of the method of concomitant variation. Now what does this principle mean? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि according to this method जब भी कोई दो चीज एक साथ वेरी करे, ओके, एक साथ इंक्रीज डिक्रीज हो या फिर एक इंक्रीज हो दूसरा डिक्रीज हो, दूसरा इंक्रीज हो तो पहले वाला डिक्रीज हो, इस तरह से अगर दो चीज एक साथ वेरी करे तो फिर दे आर कॉजली कनेक्टेड, एक का कॉज दूसरा होता है. ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस कैनॉन एंड द होल मेथड ऑफ कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन इज बेस्ड ऑन दिस कैनॉन. इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी दो चीज एक साथ घटे बढ़े या फिर एक साथ बढ़े एक साथ घटे तो फिर दोनों कॉजली कनेक्टेड है, एक का कॉज दूसरा है. Okay, that which varies together as are causally connected to each other. Okay, I hope it is clear. Let us proceed with the method. Now, ये जो method of concomitant variation है, it is of 2 kinds. This variation is of 2 kinds. Okay, how many kinds of variation are there? There are 2 kinds of variation. Number 1 is direct variation and number 2 is inverse variation. Once again, there are 2 kinds of variation in this method of concomitant variation. Number 1 is direct variation and number 2 is inverse variation. So let us see what is a direct variation. Direct variation क्या है? Direct variation means similar manner. डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब है जब दो चीज एक साथ वेरी हो इन अ सिमिलर मैनर, मतलब अगर एक इंक्रीज हो तो दूसरा भी इंक्रीज हो, अगर एक डिक्रीज हो तो दूसरा भी डिक्रीज हो. अगर इस तरह से दो चीज इन अ सिमिलर मैनर वेरी कर रहा है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन. Okay, that when two things varies in a similar manner, when two things varies in a similar manner is known as direct variation. Okay, for example, according to Albert the Great, a scientist, he has discovered that जब भी the moon का size बढ़ेगा तब जो टाइड होता है समुद्र में, जो waves tides होता है वो भी बढ़ेगा. Okay, so if the size of the moon increases, so the waves of the tides of the ocean also increases. So दोनों एक साथ बढ़ता है तो एक का कॉज दूसरा है. Okay, so इस तरह के examples are these are the invention through method of concomitant variation, that also through direct variation. Okay, once again, what is direct variation? Direct variation का मतलब है जब दो चीज एक साथ इन अ सिमिलर मैनर वेरी करे, अगर एक इंक्रीज हो तो दूसरा भी इंक्रीज हो, अगर एक डिक्रीज हो तो दूसरा भी डिक्रीज हो, इस तरह का अगर वेरिएशन हो तो फिर वो डायरेक्ट वेरिएशन होता है.
और एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जब भी हम लोगों को बुखार होता है तो हम लोग कैसे चेक करते हैं कि हम लोगों को बुखार है? हम लोग चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर, राइट? विद द हेल्प ऑफ अ थर्मोमीटर वी चेक कि हम लोगों का टेम्परेचर कितना है। तब वो भी एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट वेरिएशन का, क्योंकि जब द हीट इंक्रीजेस द मर्क्यूरी ऑल्सो एक्सपैंड्स इन वॉल्यूम। जब बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा होगा, तो वो जो थर्मोमीटर के अंदर मर्क्यूरी होता है, वो जो मेटल होता है मर्क्यूरी, वो भी बढ़ता है। ओके, इफ द हीट इंक्रीजेस देन दैट द वॉल्यूम ऑफ दैट थर्मोमीटर ऑल्सो इंक्रीजेस, एक्सपैंड होता है। ठीक है, सो दोनों एक साथ बढ़ता है। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द मर्क्यूरी इन द थर्मोमीटर? द कॉज इज द एक्सपेंशन और द इंक्रीज ऑफ हीट। ओके, सो एक का कॉज दूसरा है, राइट? सो दैट इज वन मोर एग्जाम्पल ऑफ मेथड ऑफ concomitant वेरिएशन। एंड विच वेरिएशन? डायरेक्ट और इनवर्स? यस, डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट वेरिएशन, दैट इज इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन मीन्स डिसिमिलर मैनर। इसका मतलब ये है, इनवर्स वेरिएशन का मतलब ये है कि जब दो चीज in a dissimilar manner vary करें. If two things varies in a dissimilar manner, not in a similar manner. Like अगर एक increase हो तो दूसरा decrease होता है, और अगर एक decrease हो तो दूसरा increase होता है। अगर इस तरह से dissimilar manner में कोई दो चीज वेरी करता है तो भी एक का कॉज दूसरा होता है, तो भी देयर इज अ कॉजल कनेक्शन बिटवीन द टू। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप लोगों ने इकोनॉमिक्स अगर पढ़ा होगा तो डिमांड एंड सप्लाई के बारे में तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा, राइट? सो जब डिमांड ज्यादा होता है, जब डिमांड कब ज्यादा होता है किसी चीज का डिमांड तब ज्यादा होता है जब उसका सप्लाई कम होता है। किसी चीज का अगर सप्लाई डिक्रीज हो जाए तो डिमांड इंक्रीज हो जाता है। सिमिलरली किसी चीज का अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाए, अगर सप्लाई इंक्रीज हो तो डिमांड डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है उसका डिमांड। ठीक है, कोई चीज अगर बनना ज्यादा हो जाए, ज्यादा बने, ज्यादा मार्केट में आए, तो फिर उसका जो डिमांड है वो कम होगा, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, इसलिए डिमांड कम है। बट अगर कोई चीज मार्केट में कम हो, ओके, बनना कम हो या फिर मार्केट में सप्लाई कम हो, तो फिर उसका डिमांड ज्यादा होता है। सो वन इज द कॉज ऑफ द अनदर, बिकॉज दे आर वेरिंग इन एन इनवर्स मैनर। एक ज्यादा है तो दूसरा कम है, दूसरा ज्यादा है तो एक कम है। सो दिस इज कॉल्ड डिसिमिलर मैनर। जो व्हेन टू थिंग्स वेरीज इन सच अ वे इन अ डिसिमिलर मैनर, देन इट इज नोन एज वेरिएशन ऑफ इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, so these are the two kinds of variation in the method of concomitant variation. One is direct variation and the other is inverse variation. Okay, so I have given you some of the examples, so let us see which are the examples. सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था, फॉर डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन मतलब जब दो चीज एक साथ इंक्रीज या डिक्रीज हो। तो जब भी मून का साइज बढ़ जाता है तब क्या होता है, जो टाइड होता है, वेव्स होता है, ओशन, उसका भी वो भी बढ़ जाता है। ओके, तो उसका जो कॉजल रिलेशन है, इट इज इन्वेंटेड बाय, इट इज डिस्कवर्ड बाय एल्बर्ट द ग्रेट। ओके, एल्बर्ट द ग्रेट, a scientist has discovered it through this method of concomitant variation in the year 1206 and 1280. During this year, he has invented that जब भी मून का साइज बढ़ता है तब भी टाइड भी, ओशन में टाइड भी बढ़ता है। So one is related to the another. One is causally connected to the another. Okay, they are causally connected. So this has been discovered by Albert the Great, a scientist. Okay, and it is through this method of concomitant variation and the process of direct variation. This is the process of direct variation, क्योंकि दोनों एक साथ increase decrease हो रहे हैं।
जब द मून का साइज इंक्रीज होगा तो टाइड भी इंक्रीज होगा। सो दोनों एक साथ इंक्रीज हो रहा है। और जब मून का साइज डिक्रीज होगा तब द टाइड भी डिक्रीज होगा, तो एक साथ डिक्रीज हो रहा है। सो इन ए सिमिलर मैनर दे आर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन ए सिमिलर मैनर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज direct variation. So let us see some of the examples. One more example of direct variation. वो भी मैंने अभी आप लोगों को बोला है, जब हीट इंक्रीजेस द मर्क्यूरी एक्सपैंड्स। ओके, ये भी एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट वेरिएशन का। जब भी हम लोगों को बुखार होता है तो हम लोग टेम्परेचर चेक करते हैं, राइट? जब टेम्परेचर चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ थर्मोमीटर, वी सी दैट when our temperature increases the mercury in the thermometer also expands. Okay, जब temperature increase होता है तो mercury जो होता है वो भी expand होता है. Okay, so if one is increasing, the other one is increasing together with it. So what is the reason, what is the cause of the expansion of mercury? The cause is the increasing heat. That means they both are causally connected. Through what? Through direct variation of method of concomitant variation. Okay, let us see one example of inverse variation also. Inverse variation मतलब जब दो चीज एक साथ इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है, बट दो चीज इंक्रीज डिक्रीज, अगर एक इंक्रीज हो तो दूसरा डिक्रीज होता है, और अगर एक डिक्रीज हो तो दूसरा इंक्रीज होता है। दैट इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। और जिसका एग्जांपल मैंने दिया है डिमांड एंड सप्लाई का एग्जांपल। ओके, सो जब सप्लाई किसी चीज का ज्यादा हो जाए तो उसका डिमांड जो है वो कम हो जाता है, और अगर डिमांड किसी चीज का ज्यादा हो तो उसका सप्लाई जो है वो कम हो जाता है। सो दे आर कॉजली कनेक्टेड टू ईच अदर, वन इज द कॉज ऑफ अनदर. So that is also an example of the method of concomitant variation, which is known as inverse variation. Okay, clear? So let us quickly revise our today's class. Okay, we are doing with chapter 4, and what is the name of the chapter? The name of the chapter is Mills experimental inquiry. There are 5 experimental methods which are the devices through which we can find out the cause, or through which we can find out the causal connection between the cause and the effect. Okay, जो भी फेनोमेना अंडर इन्वेस्टिगेशन है उसका कॉज को ढूंढने के लिए हम लोग ये मेथड यूज करते हैं. So far हम लोगों ने मेथड ऑफ एग्रीमेंट देखा. देयर आर 5 मेथड्स एज you know: method of agreement, method of difference, the joint method of agreement and difference, the method of concomitant variation and the method of residues. तो so far हम लोगों ने मेथड ऑफ एग्रीमेंट पढ़ा है, मेथड ऑफ डिफरेंस पढ़ा है, द जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस पढ़ा है. आज हम लोगों ने शुरू किया है द मेथड ऑफ concomitant variation. Okay, so what is the principle or the canon of the method of concomitant variation? The principle or the canon of this method is that जब भी दो चीज एक साथ वेरी करें, एक साथ इंक्रीज हो, एक साथ डिक्रीज हो, देन दे आर कॉजली कनेक्टेड. या फिर एक इंक्रीज हो दूसरा डिक्रीज हो, दूसरा इंक्रीज हो तो एक डिक्रीज हो, तो भी they are causally connected. If they vary together, that means they are causally connected. This is the principle of the method of concomitant variation. According to the method of concomitant variation, there are 2 kinds. Okay, 2 kinds of variation are there. One is direct variation and one is inverse variation. Direct variation का मतलब है जब दो चीज वेरी करे in a similar manner, एक साथ इंक्रीज हो एक साथ डिक्रीज हो, दैट इज नोन एज सिमिलर मैनर. जब दो चीज एक साथ इंक्रीज हो या फिर एक साथ डिक्रीज हो तो फिर उसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन. नाउ व्हाट इज इनवर्स वेरिएशन? इनवर्स वेरिएशन का मतलब है जब दो चीज में वेरिएशन तो है पर एक इंक्रीज हो तो दूसरा डिक्रीज हो, या फिर दूसरा इंक्रीज हो तो एक डिक्रीज हो. इस तरह का अगर वेरिएशन हो तो फिर उसको बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन. ओके, सो these are the 2 kinds of variation in this method of concomitant variation. जब दो चीज इंक्रीज डिक्रीज हो in a similar manner, then it is known as direct variation. और अगर in a dissimilar manner इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, then it is a inverse variation. Okay, I hope this method is clear to all. कोई भी confusion हो then we can discuss in the live class. But today I want to tell you one thing. पिछले टेस्ट जो मैंने लिया है, मैंने देखा है आप लोगों ने एक मिस्टेक किया है. मैंने पूछा था व्हाट इज द कैनन ऑफ द मेथड ऑफ डिफरेंस एंड व्हाट इज द कैनन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द मेथड ऑफ डिफरेंस. इन दोनों क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, जबकि ये मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ. ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में 2 तरह के कैनन है. एक है कैनन ऑफ एलिमिनेशन और एक है कैनन ऑफ द मेथड. सो हर मेथड का एक एक कैनन होता है.
जैसे मेथड ऑफ कॉन्कोमिटेंट वेरिएशन का कैनन ये है, दिस इज द कैनन ऑफ दिस मेथड, दिस इज नॉट द कैनन ऑफ एलिमिनेशन. कैनन ऑफ एलिमिनेशन मैंने पहले ही आप लोगों को समझाया है. देयर आर 4 कैनन्स ऑफ एलिमिनेशन, दैट इज डिफरेंट एंड दिस इज द कैनन. सो अगर कैनन ऑफ मेथड ऑफ कॉन्कोमिटेंट वेरिएशन आए तो आप लोगों को ये लिखना है, कैनन ऑफ एलिमिनेशन नहीं लिखना है. बट अगर कैनन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ कॉन्कोमिटेंट वेरिएशन आए तो वो जो मैंने आप लोगों को कैनन ऑफ एलिमिनेशन समझाया था वीडियो में, एज वेल एज नोट्स भी दिया था, आप लोगों को वो कैनन लिखना है. सो द थर्ड, देयर आर 4 कैनन्स. आउट ऑफ द 4 कैनन्स द थर्ड कैनन इज द कैनन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ मेथड ऑफ कॉन्कोमिटेंट वेरिएशन. सो दे आर डिफरेंट, सो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट. वन इज कैनन ऑफ एलिमिनेशन एंड वन इज द कैनन. ओके, एक है प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन और एक है प्रिंसिपल ऑफ द मेथड. सो मेथड ऑफ एग्रीमेंट का जो कैनन ऑफ एलिमिनेशन है, दैट इज द फर्स्ट कैनन. द सेकेंड कैनन इज द कैनन फॉर कैनन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द मेथड ऑफ डिफरेंस. For joint method there is no canon of elimination, but for concomitant variation the third canon of elimination is the canon of concomitant variation, and the fourth canon of elimination is the canon for method of residues. ठीक है, so canon of elimination is different from the only canon of the method. ठीक है, clear? I have explained to you many times, so in future डोंट मेक दिस मिस्टेक. अगर फिर भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है रिगार्डिंग द कैनन ऑफ एलिमिनेशन एंड द कैनन, देन प्लीज डिस्कस इन द लाइव क्लास. ओके देन आई होप टुडेज क्लास इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, देन वी कैन श्योरली डिस्कस इन आवर लाइव क्लास. सो हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू.